Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay, Faculty of History Optional and GS at IS Delhi Institute. And this is the only video that you need to see regarding the timeline and chronology of ancient Indian history. Because by the end of the video, you will be able to answer any question that comes from this particular section. And this is also a very repeated section in UPSC. For example, if you look at these two PYQs, in the year 2020, there was a question that said, consider the following events in the history of India, and they had given you a list of certain events, and it is a very easy event. For example, these are Pallavas, Bhoja. By the end of the video, these are going to become very easy and you will be able to answer it yourself, right? Again, for example, in the year 2022, there was another question that gave you the name of certain kings and dynasties, and you had to match them together. Again, a very easy question. You will be definitely able to answer this by the end of the video. Again, if you see, in the year 2023, there was another question, and this particular question again was on the similar lines, which says, consider the following dynasties. They had given you a list of dynasties, and at the end they had asked that which of the following dynasties belong to 8th century AD. तो अगर आपको chronology पता है, these become very very easy. Now the problem is कि when students read, they generally focus. Chronology का मतलब उनके लिए है कि it is the Stone Age which is followed by they have this general idea that it is the Stone Age, and Stone Age followed by Harappan civilization, Vedic age, rise of Mahajanapadas, Maurya, Gupta, Harshavardhan, early medieval period. लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अभी जो मैंने PYQs बोला, those PYQs they ask questions not from this chronology, they ask question from this chronology, regional history, and ये जो regional histories है ये more than often this is neglected, right? Or often it is taught in such a way that students start feeling very complicated. So that is not going to happen in this particular video. So watch till the end. Now let us begin. See, what happens is, first and foremost, when we read chronology, we have to understand one thing, that history as a subject is divided into three parts. The first part is called the prehistoric period, second part is the proto-historic period, and third part is known as the historic period, that is now. अब prehistoric period and historic period का generally सबको idea होगा. Now if it comes in the question that proto-history किसको बोलते हैं? Proto-history is a period in between the two. Prehistoric period में क्या है? It is a period where no written evidence is available. ठीक है, कोई भी written literature जो है वो हमारे पास available नहीं है. Proto-historic period is a period जहाँ पे हमारे पास written literature available तो है, but it is our limitation that we have not been able to read this. And historic period is a period where written literature is available. Now if you consider the history of India, proto-historic period कौन सा period है? Proto-historic period is the Harappan civilization. Why? Because for the Harappan civilization, for India it is Harappan civilization. Harappan civilization में हमें ना कुछ seals मिले हैं, कुछ एक बड़े बिलबोर्ड टाइप मिले हैं, कुछ बोलते हैं that is an advertisement board or whatever it is. Now the thing is कि these things they contain certain writings, but we have not been able to read that. तो इसको इधर भी नहीं रख सकते, इधर भी नहीं रख सकते. So it is generally proto-history. Now to understand the Stone Age, one more thing that you need to know कि हम इस चीज़ को why do we call it Stone Age? हम तो कुछ और भी बोल सकते थे, right? It is called Stone Age because people used to spend most of their times with their stone टूल्स, बिकॉज इनके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द स्टोन टूल्स, एंड दैट इज, और भी फॉर एग्जाम्पल वी हैव पॉटरी, वी हैव देयर स्केलेटल रिमेन्स, बट दोज आर नॉट वेरी मेजर वंस. मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज द टूल्स, बिकॉज अगर हम टूल्स को एनालाइज करें तो दैट इज गोइंग टू गिव अस एन आइडिया अबाउट देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया कि उनका मेंटल डेवलपमेंट, वो किस लेवल तक सोच सकते थे. फॉर एग्जाम्पल इन सम पीरियड्स यू विल फाइंड दैट द स्टोन टूल्स वेर लाइक फ्लिंट. फ्लिंट मतलब क्या हो गया? इट इज बेसिकली काइंड ऑफ क्रूड चिप काइंड ऑफ थिंग. Later on you will see that they become, in the Mesolithic period, they become geometrical and smaller in size, and बाद में Neolithic period में they will become very polished and स्पेशलाइज्ड. ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि तीनों पीरियड में उनका मेंटल डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट? दिस इज वन थिंग. another thing is कि this also shows, by analyzing their stones we can also understand their subsistence base. Now what is the meaning of
subsistence base. Subsistence base basically means that, you know, when you how you live your life, what is the food you eat, whether you stay in one place, whether you do hunting gathering, whether you live in villages, or whether you lead a nomadic kind of life. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं subsistence base. ठीक है, how you are leading your life. Based on these two things, that is the tools and their subsistence base, this period, the Stone Age, has been divided into three major parts. Three major parts क्या है? First is the Paleolithic period, ठीक है, followed by the Mesolithic period, and that is further followed by the Neolithic period. Neolithic period के बाद क्या है? We have the Chalcolithic period, and then that is again followed by the Bronze Age, and more often than not these overlap. How? For example, Paleolithic period का अगर हम बोलें, टाइम पीरियड क्या है इसका? अप्रॉक्सीमेटली 2 million years ago. बहुत जगह पे इसको 5 million years ago भी लिखा होता है. See, exactly in history we do not have a beginning date and we do not have a ending date. Whatever we guess the ages, they are all tentative. Okay, so 2 million years ago to approximately 10,000 BC, followed by the Mesolithic age, जो कि है from 10,000 BC to approximately 6,000 BC, and then we have the Neolithic period, that is from 6,000 BC to approximately 1,000 BC. ठीक है, all are BC. We are still in the definitely BC period. Okay, and if you notice, मैंने बोला हरप्पन civilization क्या है? वो Chalcolithic period को belong कर रहा है, and also to the Bronze Age period. और हरप्पन civilization का time period, if you have a basic idea, and we are further going to see in the video, it is approximately 2,700 years ago to approximately 1,500 years ago. This is generally considered to be the timeline of the Harappan civilization. Again, a rough estimation. तो ये तो इस period के अंदर आ रहा है. So why exactly are we calling it Chalcolithic? Why exactly am I calling it Bronze Age? Because the features of Neolithic age, they continue even in these two periods. This is just an addition to it. Understood? Just that Neolithic period का जो features है वो चल रहा था. People started gaining knowledge of a metal, how to use metal, and the metal was copper. So we are calling it Chalcolithic. Gradually they will learn how to make an alloy from copper, that is by mixing copper and tin, they will gradually learn how to make bronze. तो ये एक addition है in the Neolithic period, and that is it's part and it's also known as the Bronze Age civilization. ठीक है, इस तरीके से हम divide करते हैं. अब अगर हम features के बारे में बात करें, Paleolithic period for example, Paleolithic period के टाइम पे हमें ना कोई भी हमारा फीचर होता है वो हमेशा ज्योग्राफी से इंस्पायर्ड होता है. Even today, if you see the food habit of the people, that is also inspired by geography. The lifestyle is inspired by geography. So in the Paleolithic period, the temperature was very cold. इसको हम क्या बोलते हैं? A kind of Pleistocene period. Ice age like conditions जो है वहाँ पे exist कर रहा था in this particular period. That's why these people यहाँ पर क्या है? They used to have a nomadic life, and ये क्या करते थे? Dry ice age conditions में it's not very easy to do agriculture. Also agriculture क्या है ना? It's a specialized skill. For example, to do agriculture you need to have an idea about seeds, कि seeds को किस season में हमें sow करना है, seeds जो है उसको कैसे harvest करना है, कितना पानी डालना है. So still their cognitive development was not that high. That's why in the Paleolithic period people mostly did hunting gathering and they lived a nomadic life, and their tools they were very crude, या फिर flint tools भी बोलते हैं. Flint मतलब हो गया कि एक बड़ा सा हमारे पास स्टोन है, उसको क्या किया हमने, जोर से आपने किसी चीज से हिट किया, सो एक चिप उससे निकल के आ गया. दिस इज फ्लिंट. ओके, सो दिस इज अबाउट द बेसिक फीचर ऑफ द पैलियोलिथिक एज. दिस वाज फर्दर फॉलोड बाय द मेसोलिथिक पीरियड. मेसोलिथिक पीरियड में क्या है ना, मेसोलिथिक पीरियड इज काइंड ऑफ अ पीरियड बिटवीन दीज टू. नियोलिथिक पीरियड में टेम्परेचर्स एंड क्लाइमेट हैड बिकम वेरी वार्म. तो मेसोलिथिक पीरियड में इट वॉज नाइदर कोल्ड नॉर इट वॉज वेरी वार्म. यहाँ पर भी पीपल, द सब्सिस्टेंस बेस ऑफ द पीपल, हाउ दे आर लीडिंग देयर लाइफ is hunting gathering. People are still nomadic, but then now they are staying in for example in this particular place they are staying more, or we can say they are staying longer than compared to what they used to do in the Paleolithic period, because gradually हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक्सप्लोर करना कि ये फ्रूट हम खा सकते हैं, इसको हम हो सकता है ग्रो कर सकते हैं. दैट एक्सप्लोरेशन had already begun, because I told you in history we cannot fix a beginning date and a ending date. Next is, and also their lifestyle was still a nomadic lifestyle. That was followed by, and
ओके, एंड वन मोर थिंग इज कि हंटिंग गैदरिंग के साथ ही साथ दे हैड ऑल्सो लर्नड अबाउट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि लाइफ स्टॉक को किस तरीके से हमें यूज करना है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. दे ऑल्सो लर्न हाउ टू डू फिशिंग. तो ये सब चीज़ करने के लिए ना, फॉर एग्जाम्पल फिशिंग करने के लिए या फिर टू एक्सट्रैक्ट द लेदर, व्हाट यू नीड टू हैव इज स्पेशलाइज्ड टूल्स. यू नीड टू हैव अ वेरी शार्प स्पेशलाइज्ड टूल्स. तो इसमें इसलिए इस पर्टिकुलर टाइम पे द टूल दैट वी हैव इज माइक्रोलिथ्स, इज स्मॉल. ओके, माइक्रोलिथ्स, स्मॉल एंड ज्योमेट्रिकल. That was followed by the Neolithic period. Neolithic period is a warm period, ठीक है, जहाँ पे warm and humid conditions, and because of their experimentation in the Mesolithic period, they also learned how to do agriculture. This also means that now you are growing food in the place where you are, where you are staying. So gradually they started staying in one place for a continued period, and that led to the emergence of villages. समझ में आया? तो सेडेंट्री काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जो है वो उनका नियोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हो गया था, एंड डेफिनेटली दीज फीचर्स ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड दे कंटिन्यू. राइट नाउ इसके बाद जब हम कैल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज पार्ट ऑफ द कैल्कोलिथिक पीरियड. तो हरप्पन सिविलाइजेशन का कुछ ना कुछ तो ओरिजिन होगा. ओरिजिन कहाँ होगा? कोई ना कोई विलेज ही होगा. Neolithic period where there were several villages. There was a question, if you for example are a student of history optional and you have gone through the PYQs, one of the question is mention, right, to it had asked about the variations in the regional Neolithic cultures. ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में अलग अलग नियोलिथिक कल्चर डेवलप हो रहे हैं. हम बात कर रहे हैं कहाँ पे? हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन के नियोलिथिक कल्चर, दैट इज द हरप्पन सिविलाइजेशन. तो ये भी कहीं से किसी विलेज से एक्सपैंड होकर टाउन बना होगा. अंडरस्टूड? हरप्पन सिविलाइजेशन इज एन अर्बन civilization, so it must have developed from some village, right? And here यहाँ पे ऐसा मानते हैं जनरली that there was a village or an area that was known as मेहरगढ़. ठीक है, मेहरगढ़ हम इसको बोल रहे हैं. मेहरगढ़ is in present day Balochistan area, and ऐसा मानते हैं that it was basically people who were staying in Neolithic period in मेहरगढ़. They only gradually developed, as in an advanced stage as the people of Harappan civilization. And ऐसा नहीं है कि अगर मैं मेहरगढ़ बोल रही हूँ it is just one village. It is definitely there must be villages around it and various sites they developed, right? So this leads us to the next thing, that is the Harappan civilization. Now when we are talking about the Harappan civilization, origin तो मैंने बता दिया Harappan civilization का. Now after origin of the Harappan civilization, the kind of lifestyle that the Harappans had, इनका क्या था? They were an urban civilization, right? They were an urban civilization. इनका क्या है? They spread also over a large area, and ये हर civilization का क्या होता है ना? There are generally 3 stages. एक हम बोलते हैं early stage, एक हम बोलते हैं mature stage. फॉर एग्जाम्पल हरप्पा का जो हम ड्रेनेज पैटर्न, टाउन प्लानिंग पढ़ते हैं, दे ऑल बिलोंग टू द मैच्योर फेज. सो अर्ली, मैच्योर एंड लेटर फेज, जहाँ पे ग्रेजुअली एक सिविलाइजेशन का डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट होता है. ओके, सो अर्ली फेज ऑफ हरप्पा दैट बिलोंग्स टू द कैल्कोलिथिक पीरियड. मैच्योर फेज जो है वहाँ पे पीपल हैड लर्नड हाउ टू यूज ब्रॉन्ज. दैट्स वाई हरप्पन सिविलाइजेशन इज मोस्टली कॉल्ड अ ब्रॉन्ज एज civilization, and that was followed by the later phase. Later phase में क्या है? उसका gradual decline start हो गया था. Now this will bring us to the next thing, that when we are talking of decline के क्या है? अगर हम देखते हैं, ये क्या है ना कि हमारा क्रोनोलॉजी का वीडियो है, so I'm not going to explain all of these points in details, but then remember कि decline के लिए क्या है? बहुत सारे factors दिए जाते हैं. Now imagine if there is a civilization, it covers a large chunk of area. Do you think it is possible कि इसके लिए बस एक ही पूरे सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए there will be only one factor? Definitely not, right? तो अलग अलग फैक्टर्स होंगे. अब ये अलग अलग फैक्टर्स क्या हैं? कुछ लोग बोलते हैं फॉर एग्जांपल देयर वर इकोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ लोग बोलते हैं इट वाज इकोलॉजिकल फैक्टर्स से ही रिलेट करके वो बोलते हैं फॉर एग्जांपल डिक्लाइन इन रेनफॉल, वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट उन्होंने कट किया था, डिफॉरेस्टेशन अगेन लीडिंग टू सम क्लाइमेट चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर. सो वो सारी चीज़ें तो है ही हैं. साथ ही साथ अनदर रीजन दैट इज गिवन इज foreign invasion. And foreign invasion by whom? Foreign invasion by Aryans, right? अब next thing that leads us to the next thing that is Aryans. Now Aryans अगर हम देखें इसको लेकर के ना, there is a dispute. For example, there are some people who say that Aryans कौन थे? There are some people they say कि Aryans mostly were people who had come to India from outside. But there is another group, they say that no, they had migrated from India to outside.
Now whatever view is true, this is part of a separate debate, ठीक है, जहाँ पे हम origin of the Aryans के बारे में पढ़ते हैं. But for now, remember, it is because we are doing chronology. It is we will consider this portion because generally this is the most acceptable one as well. कि हमारे पास क्या है? We had the Harappan civilization. उसमें one of the factors for its decline was the Vedic age and was the Aryans. And Aryans, why? Because they had superior weapons. They had horses which were of very good quality. Even though हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं दे वर डूइंग फार्मिंग, जबकि आर्यन स्टिल क्या कर रहे थे? हंटिंग गैदरिंग में थे. उनके पास एडवांस सिटीज़ थे. आर्यन still they were in a phase of tribe, as a kind of tribe which were still migrating, even though because of their superior weapons and because of their superior horses and all of these things, they were able to defeat them. So next we move, and Aryans जो है they had written some, not written exactly, sorry, it's not written, they had composed. There is a difference between writing and composing, ठीक है. राइटिंग मतलब जब आप प्रॉपर उस चीज़ को लिख रहे हो, कंपोजिंग मतलब आपने ओरली उसको कंपोज किया, वो बाद में क्या है, बाद में वो चीज़ लिखा गया. सो आर्यंस जो है ना, आर्यंस दे हैड रिटन अ सेट ऑफ लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं वैदिक लिटरेचर. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें. वी हैव संहितास, वी हैव ब्राह्मणास, वी हैव अरण्यकास, वी हैव उपनिषद्स. तो इस तरीके से क्या है, जनरली जो संहितास है, संहितास को हम क्या बोलते हैं? वेदास भी बोलते हैं. देन वी हैव ब्राह्मणास. व्हाट आर ब्राह्मणास? ब्राह्मणास आर मोस्टली कमेंट्रीज ऑन दोज कमेंट्रीज, एनालिसिस, डिस्क्रिप्शंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑफ द वेदास. देन वी हैव अरण्यकास. अरण्यकास आर मोस्टली फॉरेस्ट टेक्स्ट. उसमें अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैजिक, दिस, मतलब इस तरीके की चीज़ें. एंड देन वी हैव उपनिषद्स. उपनिषद्स क्या है? उपनिषद्स आर द वंस दैट आर फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वेदास. मतलब वेदास में जो चीज़ लिटरल सेंस में लिखा गया है उसको हम फिलोसॉफिकली किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है. दैट इज उपनिषद्स. एंड उपनिषद्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लेटर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. सो अगेन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर वी हैव नेक्स्ट थिंग दैट फॉलोज इज द वैदिक एज. एंड हम वैदिक एज को इसलिए वी आर कॉलिंग इट वैदिक एज. वाई? बिकॉज द आर्यंस हैड composed, but they had, our main source of knowledge for them are the Vedas. Okay, now Vedic age as such, यहाँ पर क्या है ना, there is a division. Vedic age is further divided into two parts. That is the early Vedic age. Here we have the early Vedic age, that is 1500 to 1000 BC, and 1000 BC to 500 BC. This is known as the later Vedic age. Also known as, this is also known as early Vedic age, is also known as the Rig Vedic age. Now the thing is कि why do we need to separate both of them? कुछ ना कुछ तो अलग हुआ होगा. That's why. Now imagine एक civilization जो है वो almost 1000 years तक continue कर रहा है. Do you think कि जब वो शुरू हो रहा है उसके जो features हैं, the same features will continue even till the time जो हम 500 BC बोल रहे हैं? Possible नहीं है. There would be evolutions. So based on these evolutions only, it is divided into two periods. For example, अगर if you have read the question of Mains, तो Mains, if I am not wrong, in the year 2023 there was a question in which they said, in 2023 there was a question in which they said they had asked about कि what was the social and economic difference between both the ages. तो जब हम difference पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना है? What was the political difference? Political क्या evolution हुआ है उन दोनों के बीच में? What was the social evolution? What was the economic evolution? And also what was the religious evolution? For example, political में क्या है? Political में initially it was tribes, there was Sabha Samiti, they played a very important role. Gradually this tribal king is becoming more and more powerful, more and more his status is increasing, divine origin हो रहा है. ट्राइब में क्या होता है? अ पर्सन हु इज मोस्ट केपेबल, जो कि वॉर में जितवा पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ही इज पुट एट द टॉप. बट ग्रेजुअली व्हेन इट बिकम्स हेरिडिटरी, या फिर जब हम उससे ये क्राइटेरिया हटा करके हम ये बोलते हैं दिस पर्सन इज द किंग. वाई? बिकॉज ही हैज़ गॉड्स ग्रेस. अंडरस्टूड? सो डिवाइन ओरिजिन जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तो खत्म हो गया. अंडरस्टूड? सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, सभा एंड समिति का पोजिशन इज डिक्लाइनिंग एंड द पोजिशन ऑफ द किंग इज गोइंग वेरी हाई. और भी चेंजेस हैं, दिस इज द फंडामेंटल वन. नेक्स्ट इफ यू सी सोशली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है दैट वाज नॉट सो मच. Patriarchy existed, but it was not so blunt. Gradually, in the later Vedic age, it is becoming more and more. It is patriarchal. It is becoming patriarchal. Again, if you see, for example, in the sense of caste जो है हमारे पास social, अगर हम बोलते हैं तो it was not very rigid.
फॉर एग्जाम्पल इंटर मैरिज, इंटर डाइनिंग, एंगेजिंग विथ ईच अदर, इस तरीके से कास्ट पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे दोज रेस्ट्रिक्शंस आर कमिंग अप। अगेन इफ यू लुक एट इकोनॉमी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे काउ, कैटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ। इकोनॉमी कैसे रन कर रहा है, इट इज़ रनिंग ऑन बार्टर, इट इज़, एंड द पीपल आर मोस्टली डूइंग हंटिंग गैदरिंग, ये यहाँ के इकोनॉमी का पार्ट है। ग्रेजुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे लैंड एज सच कोई प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ग्रेजुअली हियर land is gaining little importance, still the value of cow and all is cow and cattle is livestock that is continuing. Along with that we also have gradual development, economy में भी थोड़ा ज़्यादा advancement आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा specialization आ रहा है। But then remember coinage was not yet there, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, एक वर्ड है निक्श, ठीक है, बहुत सारी जगह पे निक्श लिखा रहता है और एक कुछ जगह पे सतमान लिखा होता है। निक्श क्या है, निक्श आर गोल्ड कॉइन्स एंड सतमान इज बेसिकली just rephrasing myself, nicksh is gold ornaments and satman is silver ornaments. They are ornaments, very important, okay, they are not coins. That's the entire point that I want to say, कि these are ornaments, they are not coins. coinage जो है जनरली और थोड़ा बाद में डेवलप होगा। रिलीजन में भी अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल इन द ऋग वैदिक पीरियड जो डाइवर्सिटी ऑफ गॉड्स दैट इज नॉट मच। फॉर एग्जाम्पल 3 मेन गॉड कौन थे यहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड में, वी हैव इंद्र, वी हैव वरुणा एंड वी हैव अग्नि। ग्रेजुअली मोर एंड मोर गॉड्स आर बीइंग added, understood? So based on these differences, another very important thing is कि in the period this 1000 BC जो है पीरियड में, यहाँ पर there was also discovery of iron which proved to be very very fundamental in the further developments that is going to take place. आयरन का डिस्कवरी में एक और चीज़ यू हैव टू रिमेंबर कि अभी क्या है ना कि तमिलनाडु में देर आर एक्सकवेशंस गोइंग ऑन एंड इन दैट दे आर क्लेमिंग कि आयरन का जो यूज़ है, दे न्यू द और देयर वाज यूसेज ऑफ आयरन over there much ahead of 1000 BC, but much ahead of much earlier than 1000 BC, but then that is still in the process. Okay, so for now we are going to consider this as our data. Now the Vedic age, it was further followed by it was further followed by the age of the Mahajanapadas. Now why suddenly I am saying it was the age of Mahajanapadas? It is because महाजनपदास में क्या है ना, महाजनपदास एग्जैक्टली हैं क्या, पॉलिटिकल लाइफ जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे वैदिक पीरियड का, यू विल फाइंड द डिवीजन इज सच कि लोअर लेवल पे हमारे पास क्या है, लोअर लेवल पे वी हैव विलेज या फिर ग्राम, उसके बाद क्या है ग्राम के ऊपर में वी हैव शुरू में वी हैव मोर ऑफ अ क्लैन, फैमिली बेस्ड काइंड ऑफ ग्रुप, देन वी हैव विलेज, देन वी हैव विस एंड देन वी हैव जना। तो क्लैन क्या है, एक फैमिली बेस्ड टाई है, ब्लड रिलेशन, फैमिली बेस्ड टाई। Village is people of the clan together forming the village. Vis is more of a, Jana is kind of a state, and this is more as we can say district या फिर a group that is larger than a village but lesser than a state. This was the basic administrative division that existed at this point of time as well as in the later Vedic period. तो इससे क्या है ना कि कुछ जो जना हैं, these janas some were big or we can say बिग या फिर वी कैन से मेजर, ज़्यादा पावरफुल थे, उनका एरिया ज़्यादा था, द किंग्स वर मोर पावरफुल, दे वर नोन एज मेजर महाजनपदास, दैट इज मेजर जनपदास और वी कैन ऑल्सो से महाजनपदास। एंड देर वर सम स्टेट्स दैट वर स्मॉलर एंड दिस वॉज अ कॉन्ट्रास्ट, दैट से ये हो गए महा और वो हो जाएंगे इससे रेगुलर जनपदास, ठीक है। अब जब हम महाजनपदास की बात करते हैं, हाउ डिड दीज 16 महाजनपदास एमर्ज एज सुपीरियर, देर मस्ट बी सम रीजन। तो रीजन इसके पीछे ये है कि इन द लेटर वैदिक पीरियड व्हेन द किंग्स बिकेम वेरी वेरी पावरफुल, these kings were also fighting among each other, and in the process of this fight some became the kind of some accepted the hegemony of the others, ठीक है। तो वो मेजर हो गए और जो बाकी वाले हैं वो स्मॉलर हो गए, समझ में आए। इस तरीके से क्या है, हमारे पास 16 महाजनपदास हैं। एक्सक्यूज मी। Now when we talk of these 16 Mahajanapadas, उसमें से भी there was one Mahajanapada that was becoming very very powerful, and that Mahajanapada is going to be Magad। समझ में आया आगे, और मगध में ही क्या है हमारे पास, one of the dynasties will be the
मौर्यन डायनेस्टी। सो इसको हम आगे पढ़ेंगे। एंड महाजनपदास का इमर्जेंस भी देखो, बिकॉज आई टोल्ड यू कि लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे ही हो रहा है, जस्ट उसके आसपास यू नो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड द टाइम पीरियड एज 500 BC, राइट। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब इसके बाद देयर इज वन मोर थिंग दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, दैट इज राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बहुत बार ना अगर ये आइडिया होना चाहिए कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म किस टाइम पे एग्जैक्टली राइज कर रहे हैं, तो महाजनपदा का जो पीरियड है ये उसी टाइम पे राइज कर रहा है, ठीक है। इट्स नॉट क्रोनोलॉजिकली लेटर वैदिक एज फॉलोइंग द एज महाजनपदास फॉलोइंग द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स इन द सेम टाइम पीरियड दैट ऑल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग, ओके। एंड ये जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का राइज क्यों हो रहा है? द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इज हैपनिंग, just one second, rise of Jainism and Buddhism is happening because because of the changes that are happening in the later Vedic period, especially changes in the सोसाइटी या फिर सोशल चेंज जिसको हम बोल सकते हैं उसके वजह से। फॉर एग्जाम्पल कास्टिज्म इज ग्रोइंग अलॉट, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इज इंक्रीजिंग, देन वी ऑल्सो हैव दीज काइंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशंस आर इंक्रीजिंग। सो व्हेन वी रीड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन डिटेल्स, देन वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ द वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ओके। आयरन ऑल्सो हैड एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, उपनिषद्स ऑल्सो हैड एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस मच। नेक्स्ट इफ वी सी, मैंने क्या बोला, वहाँ से 16 महाजनपदास में देर वॉज द राइज ऑफ वन महाजनपदा विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वॉज मगध। अब मगध में भी ना, मगध क्या है? मगध इज बेसिकली अ प्लेस। नाउ व्हेन मगध इज अ प्लेस, इसमें देर विल बी सेवरल डायनेस्टीज। डायनेस्टीज मतलब क्या है कि शुरू में जब मगध एक महाजनपदा था, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इट वॉज जस्ट वन ऑफ द 16 महाजनपदास। देर माइट बी सर्टन किंग्स, फॉर एग्जाम्पल देर माइट बी सम डायनेस्टी, ओके। ग्रेजुअली उस डायनेस्टीज के सारे राजा जो केपेबल होंगे ऐसा नहीं है। व्हेन देर विल बी एन इनकेपेबल रूलर, some other person will come and remove that king and establish his own rule, तो उससे क्या है, उसका डायनेस्टी स्टार्ट होगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मगध, यहाँ पे the earliest dynasty that we know of, that is the हरियांका डायनेस्टी, ठीक है। हरियांका डायनेस्टी जिसके मेजर रूलर्स कौन है? फॉर एग्जाम्पल मेजर रूलर्स आर बिंबिसार एंड अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु के टाइम पे क्या है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वी हैव, फॉलोइंग द हरियांका डायनेस्टी, वी हैव द शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, इसके इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? फॉर एग्जाम्पल कालाशोका, ठीक है। कालाशोका का टाइम पे क्या हो रहा है? वी हैव द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ मगध वॉज द नंदा डायनेस्टी, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वॉज महापद्मनंदा एंड धनानंदा, ठीक है। एंड दैट दिस धनानंदा, he was kind of an important ruler, and after him the next major dynasty, he was killed, and the person who established the next rule, it was Chandragupta Maurya, and that's why we call it as the Mauryan dynasty. अंडरस्टूड? तो अभी समझ में आ रहा है कि मौर्यन एज हम क्या बोल रहे हैं, और इनका जो पीरियड है उसको हम बोल रहे हैं मौर्यन एज। वाई? बिकॉज दे वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ऑलमोस्ट ओवर द होल ऑफ इंडिया। हिंदू कुश माउंटेन से लेकर के वी हैव टिल मैसूर, तो क्या हो रहा है, हिंदू कुश से लेकर कर्नाटका तक का एरिया ये कवर कर रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी वास्ट एरिया, दैट्स वाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट वॉज एन एज ऑफ द मौर्यास, ओके। फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर। नाउ हियर वन थिंग टू रिमेंबर इज कि ये जो पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड, यहाँ पे अ फॉरेन इन्वेजन हैड हैपेंड एंड दैट वाज अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ था। अनदर थिंग जो मैं बोलना भूल गई पहले, कि जब महाजनपद पीरियड है ना, उस टाइम पे देयर वाज द फर्स्ट अनदर फॉरेन इन्वेजन, दैट वाज द ईरानियन इन्वेजन, ठीक है। वहाँ पे हम डेरियस की बात कर रहे हैं। सो ईरानियन इन्वेजन काइंड ऑफ, अगर हम आर्यंस का हटा दें तो फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन अगर हम बोल सकते हैं, दैट वाज द इन्वेजन, दैट वाज द इन्वेजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मौर्यन एज। मौर्यन एज वॉज फॉलोड बाई this Mauryan age, the rule of the Mauryas was followed by certain, just a minute, it was followed by certain regional kingdoms. Why? Because Mauryas का मैंने क्या बोला, it was almost an all India empire. Now when a weak king, और इनका कैपिटल क्या था, कैपिटल वॉज मगध। मगध कहाँ है? प्रेजेंट डे अगर हम बोलें तो वो पटना एंड बिहार, बेसिकली बिहार के आसपास वाला एरिया। एंड डोंट कंसिडर व्हेन आई से बिहार प्रेजेंट डे का पॉलिटिकल बाउंड्री, ओके। एट दैट टाइम द बाउंड्रीज वर डिफरेंट, सो इट्स दिस पर्टिकुलर, इट वॉज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ व्हेन द वीक रूलर सिट्स हियर,
ग्रेजुअली इसी के जो गवर्नर्स हैं ना इन डिफरेंट पार्ट्स, दे विल स्टार्ट डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस, दे विल स्टार्ट डिक्लेयरिंग देयर independence one after another. So several cracks began, and in different regions, different dynasties they came up, and we have to know who were these rulers, because question comes from this particular area. अब यहाँ पर क्या है, इस particular period में also remember one thing, whenever there are cracks, always there is a, mostly, not always, mostly there is foreign invasion. Okay, mostly there is, when there is no proper central authority, it becomes easy for foreigners to attack at that point of time. That's why in the, एक second, what was the, just a moment, why are we here in the Mauryan age? अच्छा, just a moment. So Mauryan age, this is a time period, I am talking about the post Mauryan age. Okay, so let us come to this slide. Yes, post Mauryan age. Now when I talk about this post Mauryan age, एक तो मैंने अभी बता ही दिया कि post Mauryan age का क्या है, कि regional the cracks, various cracks had developed, and there were different kind of provincial governors who were declaring independence, and there was foreign invasion at this point of time. That's why in the post Mauryan period, या फिर we can also say in the pre Gupta period, there were broadly two types of rulers. सबसे पहले क्या है, there were some foreign invaders who had established their kingdoms, and there were some native rulers or native dynasties. Native dynasties की अगर हम बात करें तो मगध में क्या है, after killing the last Mauryan ruler, this Sunga dynasty was established. ठीक है, why? Because उसको जिसने मारा था, his name was पुष्यमित्र Sunga. ठीक है, so from there we have Sunga dynasty. Sunga dynasty was followed by in Magad by the Kanva dynasty. और एक और दो और important regional kingdoms थे. One of them was छेदी. छेदी कहाँ है? कलिंगा area. ठीक है, कलिंगा area very important. अशोका for example he has mentioned about this Kalinga war 13th अपने रॉक एडिक्ट में. तो छेदी dynasty जो है that came to power, that became very powerful actually in this region, in the Kalinga area. And in the Deccan area there was another important native power, and those were the Satavahanas. ठीक है, there were Satavahanas, right? Satavahanas playing a major role in the development of Amravati School of Art. ठीक है, उनको आंध्रकास भी एक तरीके से बोल सकते हैं. And foreign invasion में कौन कौन थे? Initially it was the Indo-Greeks. Their invasion. After that we have the Sakas. Then we have the Sakas. Then we have Parthians. And then we have Kushanas. ठीक है, just remember Kushanas. इसमें just remember these names. Indo-Greeks की अगर हम बात करें, for example Meander, he was a very important ruler of the Indo-Greeks. For example अगर एक question भी आया था मिलिंदा पान्हो. ठीक है, मिलिंदा पान्हो क्या है? It's a conversation between this Indo-Greek king Meander and Buddhist जो हमारे monk थे Nagarjuna, and their conversation was written down, and he had converted to Buddhism, and their conversation was written down in this book called मिलिंदा पान्हो. ठीक है, ये हो गया. फॉर एग्जाम्पल साकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? वी हैव रुद्रदामन. रुद्रदामन का क्या है? रुद्रदामन को एक और कॉन्टेक्स्ट में हमें याद रखना पड़ेगा कि रुद्रदामन ही हैड ऑल्सो रिपेयर्ड अ लेक दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द मौर्यन टाइम. ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं सुदर्शन लेक. तो इस कॉन्टेक्स्ट में इनको याद रखना है. देन वी हैव पार्थियंस. पार्थियंस में एन इम्पॉर्टेंट रूलर वॉज गोंडर फर्नेस. ठीक है, गोंडर फर्नेस वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्थियन रूलर, एंड इसके टाइम पे देयर वर ऑल्सो सम क्रिश्चियन मिशनरीज हु हैड कम टू India. So remember, we are talking of the period, we are still in 185 to 319 185 to 319 AD. Okay, this is a little 185 BC से लेकर के 319 AD. Okay, just keep in mind this rectification. ठीक है, तो हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं. इतने पहले के पीरियड में we have the coming of Christian missionaries along with the Parthians. Okay, next we have the Kushanas. Kushanas का ऑलरेडी सबसे मेजर, इसमें से अगर हम देखें, मेजर फॉरेन पावर जिसने बहुत लंबे एरिया तक, बहुत बड़े एरिया में अपना कंट्रोल डोमिनेट किया था, दोज वर द कुशानास. कुशानास का अगेन क्या है? इन सब ने, ऑलमोस्ट इन सब ने, स्पेशली कुशानास को अगर हम बोलें, कुशानास इनके टाइम पर क्या हो रहा है? इनके टाइम पर हो रहा है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. कनिष्का का टाइम पे वी हैव फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल.
Kushanas also played a very important role in the development of various schools of art. For example, we have Gandhar, we have मथुरा. इन दोनों में क्या है, इन दोनों में डोमिनेंट बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है. इवन दो इन मथुरा हमारे पास क्या है, द स्टैचूज दैट आर बीइंग मेड, इसमें जैन दे आर स्टैचूज विच रिलेट टू जैनिज्म, बुद्धिज्म एज वेल एज हिंदुइज्म. लेकिन गांधार के जो स्टैचूज बन रहे हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में, दे आर मोस्टली रिलेटिंग टू बुद्धिज्म. ओके, एंड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का एक इंपॉर्टेंट बेस अगर हम बोलें, दैट वाज लेड बाय द इंडो ग्रीक्स. तो ये हो गया हमारे पास पोस्ट मौर्य या फिर हम प्री गुप्ता पीरियड भी बोल सकते हैं. एंड दिस इज द टाइम पीरियड 185 BC जहाँ पे मौर्यन पीरियड का एंड हो रहा है, एंड वी हैव द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 320 AD. एंड यहाँ पे आई हैव मेंशन द वर्ड सिरका. सिरका मीन्स approximate, okay, because I told you in history we cannot fix a beginning and an ending year, right? Okay, now this brings us to the next thing, that is the Guptas. अब अगर हम गुप्तास की बात करें, ओके, वन मोर, यस, संगम एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मौर्याज एंड गुप्तास के बीच में मैंने क्या बोला, पोस्ट क्वेश्चन जनरली इसी एरिया से आते हैं. मौर्याज एंड गुप्तास के बीच में इन द डेक्कन देयर वाज अनदर डेवलप, इन द नॉट डेक्कन, इन द सदर्न एरिया अनदर डेवलपमेंट वाज गोइंग ऑन, एंड दैट वाज एन एज ऑफ संगम. संगम पीरियड क्या है ना कि इन साउथ बेसिकली, जिस तरीके से नॉर्थ में मैंने बताया देयर वर सम फॉरेन पावर्स, देयर वर सम नेटिव पावर्स. सिमिलरली इन द साउथ, बिकॉज मौर्यास का इन्फ्लुएंस कहाँ तक था, इट वॉज अराउंड कर्नाटका तक, मैंने बोला मैसूर तक. मैसूर के नीचे भी देर आर किंगडम्स. अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ. हमने देखा कि मौर्यन पीरियड का डिक्लाइन हो रहा है, वहाँ पे सर्टन रीजनल किंगडम्स केम अप, समवेयर फॉरेन समवेयर नेटिव, राइट. एंड उसके नीचे, कर्नाटका के नीचे वाले अगर हम एरिया हैं या फिर उसके आसपास वाले एरिया, बिकॉज ऑब्वियसली कर्नाटका का पॉलिटिकल बाउंड्री आज जैसे हम देखते हैं, इट वॉज नॉट लाइक दैट अर्लियर. So over there were three very important dynasties. One was Cholas. Sorry, one was Chola dynasty. Then was Cholas, Cheras and Pandyas. ठीक है. इनमें से भी सबसे important dynasty it was the पांड्या डायनेस्टी. एंड पांड्या डायनेस्टी बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, एंड दे वर वेरी मेजर अमंग दीज थ्री. That's why they also used to organize, they used to give some funds to organize meetings. In meetings को हम क्या बोल रहे हैं, assemblies हम बोलते हैं. These assemblies और it's also known as संगम, वहाँ पे सब मिलकर, संगम मतलब एक जगह पे आ रहे हैं. ठीक है, कौन आ रहे हैं? For example, we have poets, we have warriors. Poets are there, warriors are there. Then we also have, for example, farmers भी हम बोल सकते हैं, physicians भी हम बोल सकते हैं. मतलब you take, just name any kind of profession, and we have people from those professions who are attending these sangams. इस तरीके से क्या है, पांड्या rulers they organized 3 sangams, right? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये तीनों संगम का जो ब्रॉड पीरियड है, जब वो हुआ था, उसको मिला करके हम बोलते हैं संगम एज. एंड इसमें 3 संगम्स कहाँ पे हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एट मदुराई. मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास. दूसरा वाला हो रहा है कपातपुरम में. तीसरा वाला अगेन इट इज़ हैपनिंग इन मदुराई. और हर मीटिंग का क्या होगा, हर मीटिंग का देयर विल बी अ चेयरमैन, एंड हर मीटिंग के बाद उस मीटिंग में वॉट एवर हैज़ हैपेंड दैट विल बी रिटन डाउन, राइट. सो इन मदुराई फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, द फर्स्ट संगम इन मदुराई इट वॉज हेडेड बाई सेंट अगस्त्य. सेकेंड फॉर एग्जाम्पल कपातपुरम, अगेन इट वॉज सेंट अगस्त्य. और इसमें इट इज़ बिलीव्ड कि फर्स्ट जो है संगम इट वॉज अटेंडेड इवन बाय द गॉड्स, और यहाँ का लिटरेचर जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है. ठीक है, लेकिन सेकेंड जो संगम हुआ था उसमें देयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोएट, हिज नेम वॉज तोल्कापियार, एंड उसके एक बुक लिखा गया था, ही हैड रिटन, दैट नेम वॉज तोल्कापियम, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स ऑफ तमिल ग्रामर. ओके, एंड थर्ड जो संगम हुआ था इट वॉज बाई अ पर्सन नेम्ड नक्कीरार. ठीक है, कहीं नक्कीकार भी लिखा जाता है, NAKKIRAR. तो इट वॉज हेडेड बाई दिस, प्रिसाइडेड बाई नक्कीरार, एंड इसमें बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे आफ्टर दिस. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एतुतोगाई, वी हैव पत्तू, इलांगो अधिगल का वी हैव शिलापदिक्रम. ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो इस टाइम पे लिखे गए थे. समझ में आया? सो आई होप दिस इज क्लियर. यू हैव टू रिमेंबर, आई टोल्ड यू कि जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आई हैव इंक्लूडेड इन this entire video. Now if a question comes outside whatever I have discussed in this video, then high chances are that others will also not be able to
attempted. So just follow the video and you can also keep taking some running notes. तो कैपिटल क्या है? कैपिटल फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर द कैपिटल, यू हैव टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल मुजीरिस. मुजीरिस वॉज फेमस फॉर इंडो रोमन ट्रेड. इस टाइम पे एक्टिव ट्रेड कर रहे थे वो रोम के संग. एंड वी ऑल्सो हैव इंडो रोमन ट्रेड. पूहर फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आया था कि पूहर क्या है. दे हैड गिवन सर्टन टर्म्स एंड दे हैड सेड, आई थिंक दिस वॉज इन द ईयर 23 प्रीलिम्स, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पूहर रिलेट्स टू बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग. पूहर एंड एक दो और नाम था कि ये किस चीज़ को रेफर करते हैं. सो इफ़ यू न्यू इट यू वुड, पूहर अगर इतना भी पता होता यू वुड हैव बीन एबल टू रीच द आंसर दैट इट्स अ पोर्ट. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, द इंपॉर्टेंट एंड फेमस रूलर्स ऑफ दीज डायनेस्टीज. Next we come to the Gupta dynasty. Now when we talk about this Gupta dynasty क्या था? मौर्यास के बाद one of the major North Indian dynasties, if we can say, it was the Gupta dynasty. Almost मौर्यास का जितना बड़ा एरिया था उतना बड़ा एरिया तो नहीं था, उससे जस्ट थोड़ा सा मतलब बट उससे थोड़ा कम एरिया था. मौर्यास हैड मेंटेन डायरेक्ट कंट्रोल, बट गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? वो नॉर्थ इंडिया में जनरली डायरेक्ट कंट्रोल मेंटेन करते थे. एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, डेक्कन वाला जो एरिया है, बेसिकली डेक्कन एरिया में वो इनडायरेक्ट कंट्रोल मेंटेन करने का पॉलिसी अप्लाई करते थे. ठीक है, इनडायरेक्ट कंट्रोल मीन्स कि आप वहाँ के रूलर को हटा नहीं रहे हो, आप वहाँ के रूलर को रख रहे हो, बट उसके बेसिक फॉरेन पॉलिसीज एट्सेट्रा दैट इज बीइंग डिक्टेटेड बाय यू. ओके, एंड बाकी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है हो सकता है वो अपने हिसाब से चला सकता है. गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करते हैं, इट इज व्हाट वर द इंपॉर्टेंट रूलर्स. फॉर एग्जांपल वी हैव श्री गुप्ता, वी हैव घटोत्कच गुप्ता, वी हैव चंद्रगुप्ता द फर्स्ट, देन वी हैव समुद्रगुप्ता, उसके बाद चंद्रगुप्ता द सेकंड, एंड देन वी हैव कुमारगुप्ता. एंड कुमारगुप्ता वाज अ पर्सन, कुमारगुप्ता द फर्स्ट, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी भी बनाया था. समझ में आ रहा है? सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग about the Guptas. You should remember the chronology. You should also remember कि गुप्ता पीरियड क्या है. गुप्ता पीरियड इज अप्रॉक्सीमेटली 319 AD जहाँ पे वो खत्म हो रहा है. एंड हियर वी हैव अप्रॉक्सीमेटली टिल 550 AD. ओके, 550 AD यानी कि मिडिल ऑफ 6th century AD. गुप्तास का एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनका कैपिटल क्या था? दे हैड मगध वॉज जनरली देयर कैपिटल. एंड एक और उनका इकोनॉमिक कैपिटल था एंड दैट वॉज उज्जैन. ओके, इनके पीरियड को हम, इनके जो रूल है उसको वी ऑल्सो कॉल इट एज द क्लासिकल एज. ठीक है, क्लासिकल एज अगर हम बोलते हैं या फिर गोल्डन पीरियड हम बोलते हैं. अब क्या है ना कि कोई भी पीरियड ऐसा हो नहीं सकता दैट इज एब्सोल्युटली गोल्डन और उसमें कुछ भी अच्छा कुछ भी बुरा नहीं होगा, या फिर कोई भी एज ऐसा नहीं हो सकता जो एब्सोल्युटली डार्क होगा, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होगा. सो दे हैड देयर ओन लिमिटेशंस, बट देन देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स दैट हैपेंड in various fields. For example, in fields of literature, in fields of science, for example Aryabhatta, Barahamihir, then we have various books have been written on medicine and all during this particular period. Literature में डेवलपमेंट हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट हो रहा है. ओके, सो दिस इज बेसिकली, यहाँ पर क्या है, हम टाइमलाइन कर रहे हैं तो हम इतना डिटेल्स में नहीं करेंगे. सो दैट वाज अ गुप्ता पीरियड. नाउ दिस गुप्ता पीरियड वाज फॉलोड बाय the obviously followed by what? Followed by the post Gupta period, and it's very very important. Okay, ये post Gupta period से ना जनरली लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. So let me make it clear. Okay, post Gupta period. In the post Gupta period, again because Guptas I told you were kind of बोल सकते हैं second all India power after the Mauryas. Okay, सो इनका भी जब ये इवन देयर एम्पायर यूजुअली इज़ अ वेरी बिग एम्पायर, जब ये वीक रूलर्स यहाँ पे आएंगे दैट विल ऑल्सो हैव सम क्रैक्स एंड डिफरेंट रीजनल किंगडम्स आर गोइंग टू कम अप. तो गुप्तास के बाद जो मेजर रीजनल किंगडम्स आ रहे हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. जैसे पहले मौर्यास के बाद वी हैव डिवाइडेड इनटू नेटिव एंड फॉरेन. यहाँ पर वी आर डिवाइडिंग इनटू द रीजनल पावर्स इन द नॉर्थ एंड रीजनल पावर्स इन द डेक्कन एंड सदर्न इंडिया. नॉर्थ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज बेसिकली द वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी. बट रिमेंबर वन थिंग, अभी मैंने एक ही डायनेस्टी बोला, लेकिन मैंने क्या बोला कि बहुत सारे रीजनल किंगडम्स थे, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज द वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी. तो बाकी रीजनल किंगडम्स भी होंगे. सो नेक्स्ट स्लाइड में आई हैव गिवन द नेम ऑफ ऑल दोज रीजनल किंगडम्स एंड यू हैव टू नोट इट डाउन अलॉन्ग विद देयर इंपॉर्टेंट रूलर्स. ठीक है, उसको अच्छे से याद करना है और उनका टाइम पीरियड भी मैंने दे दिया है ताकि यू रिमेंबर द टाइम पीरियड एंड एनी क्वेश्चन दैट कम्स यू विल बी एबल टू आंसर दैट. ठीक है, जो पहले शुरू में हैव शोन यू 3 PYQs, यू विल बी एबल टू आंसर दैट. एंड anyways, either ways any question that basically comes. Now
सबसे इंपॉर्टेंट क्या था उसमें से, पुष्यभूति डायनेस्टी। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, गुप्तास का जो एंड हो रहा है अराउंड 550 AD, वहाँ से लेके मिड 7th सेंचुरी AD, दैट इज 647 BC, सॉरी 647 AD। पुष्यभूति डायनेस्टी का जो हिस्ट्री है ना, पुष्यभूति कहाँ पे है, ये थानेश्वर इनका कैपिटल था। थानेश्वर कहाँ है, हरियाणा में। लेकिन हर्षवर्धन जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, उसका कैपिटल था, उनका कैपिटल था कन्नौज। कन्नौज इज इन यूपी। सो हाउ इज इट कि एक डायनेस्टी जो है वो हरियाणा में है, उसका जो कैपिटल है दैट इज इन यूपी, right, Kannauj. So there is a very Bollywood kind of story that took place in between, and we are not going to discuss in details about that story, but just remember कि this Pushyabhuti, he was the founder. His son was Prabhakar Vardhan, ठीक है। Prabhakar Vardhan had 3 children, Rajavardhan, Rajashri and Harshavardhana. अब क्या है कि राजश्री she got married to the ruler of Kannauj, and राजश्री को कैप्चर कर लिया था किसने, एबडक्ट कर लिया था शशांक ने। क्यों कर लिया था, क्या कर लिया था, अभी हम ये सब नहीं पढ़ रहे हैं। शशांक ने क्या किया था, राजश्री को कैप्चर कर लिया था, एंड ही बेसिकली किल्ड ऑल्सो हिज दिस रूलर ऑफ कन्नौज, ठीक है, जिसका नाम है देवगुप्ता। समवेयर आई मस्ट हैव मेंशन्ड, ठीक है, सॉरी नॉट देवगुप्ता, ग्रहवर्मन। देवगुप्ता तो ही वॉज द रूलर ऑफ मालवा, ठीक है। तो शशांक एंड हिज फ्रेंड, शशांक वॉज अ रूलर ऑफ गौड़ डायनेस्टी, उस टाइम पे बंगाल में रूल कर रहे हैं। देवगुप्ता ही इज अ रूलर ऑफ मलवा। दोनों ने क्या किया, देयर वाज अ फ्रेंडशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम। राजश्री वाज कैप्चर्ड, हर हस्बैंड went to save, killed. Harshavardhan, her brother went to save, killed. Next Harshavardhan went to save her and he was able to kill शशांक, ठीक है। तो इसके बाद से कन्नौज में, बिकॉज कन्नौज में क्या बोला गया कि ओके, सो वी कैन प्लेस हर्षवर्धना ऑन द थ्रोन। सो इन दिस वे हर्षवर्धना सैट ऑन द थ्रोन ऑफ कन्नौज। दिस इज फॉर नॉर्थ। डेक्कन में क्या है, डेक्कन में देयर वर 2 इंपॉर्टेंट किंगडम्स दैट केम अप, एंड दोज 2 किंगडम्स वेर द पल्लवास एंड द चालुक्यास, ठीक है। यानी कि गुप्तास के बाद डेक्कन में क्या है, डेक्कन में वी हैव 2, दैट इज Pallavas, 2 major powers that are coming up, Pallavas and the Chalukyas and the Pallavas. अब यहाँ पर क्या है ना, ignore this. यहाँ पे ऐसा लग रहा है देखने में कि डेक्कन में it was Chalukyas and साउथ में it was Pallavas. It's not like that, okay? Both of them were in the Deccan itself. साउथ में we are going to come eventually. दोनों ही क्या है, दोनों ही in the Deccan. Deccan एरिया मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, we have महाराष्ट्र एरिया, आंध्र प्रदेश एरिया, तेलंगाना एरिया अभी के टाइम पे, ठीक है, कर्नाटका, लिटिल पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एरिया। सो दीज एरियाज वेर डोमिनेटेड बाय द चालुक्यास एंड पल्लवास। चालुक्यास इस साइड पे थे, वेस्टर्न साइड में, एंड पल्लवास वेर ऑन द ईस्टर्न साइड, एंड देयर वाज अ कंटिन्यूअस फाइट दैट वाज गोइंग ऑन बिटवीन देम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द फाइट वाज मास्टरी टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द लैंड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ फर्टाइल लैंड। इस चक्कर में क्या हो रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, and Pallava ruler, his name is Narasimhavarman, he was able to, also known as Mamalla, he was able to defeat the Chalukya ruler, that is Pulakasin the second। समझ में आया? Pulakasin the second जो है, he had defeated, पहले इसने क्या किया था, हर्षवर्धना, he wanted to, वो चाहता था कि आई एम इन कन्नौज, तो मैं नॉर्थ से अपना डोमिनेशन डेक्कन एंड साउथ में भी आई विल एक्सपैंड माई डायनेस्टी, माई किंगडम, and he was not able to do so because there was a fight that took place between Pulakasen II of Chalukya dynasty and Harshavardhana, and Harsha was defeated by him, but he in turn was defeated by the Pallavas. इसमें हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे अगेन, बिकॉज दिस इज अ टाइमलाइन क्रोनोलॉजी वीडियो एंड द वीडियो मस्ट हैव बिकम वेरी लॉन्ग, ओके। सो एनीवेज जस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग कि दिस चालुक्यास दे हैड लेड द, इनके टाइम पे चालुक्य आर्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके टाइम से ना द वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या फिर डेक्कन स्टाइल जो है वो स्टार्ट हो रहा है। पल्लवास के टाइम से वी हैव पल्लवा आर्ट। पल्लवा आर्ट क्या है, पल्लवा आर्ट में वेरी इंपॉर्टेंट इज कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पल्लवास। दैट्स वाई देयर वाज अ क्वेश्चन इन यूपीएससी मेंस स्पेसिफिकली अबाउट पल्लवा आर्ट, ठीक है, मतलब 2020 के बाद ही देयर वाज दिस क्वेश्चन, एग्जैक्ट ईयर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट द मोमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में वी आर गोइंग टू सी, आई एम गोइंग टू गिव यू द नेम ऑफ द वेरियस रीजनल किंगडम्स नॉर्थ एंड साउथ में, अपार्ट फ्रॉम द 3 दैट वी डिस्कस्ड, एंड दीज यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। इसको बस जस्ट जस्ट नोट डाउन द डायनेस्टी एंड द फाउंडर, यू विल बी एबल टू रीच टू इट। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, चालुक्यास ऑफ वातापी। अब एक चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है कि चालुक्यास जो है ना, इन टोटल
देयर वर थ्री, यू विल रीड अबाउट थ्री चालुक्यास. थ्री चालुक्यास क्या हैं? चालुक्यास ऑफ वातापी और बादामी विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. वी ऑल्सो हैव ईस्टर्न चालुक्यास एंड वी ऑल्सो हैव वेस्टर्न चालुक्यास. तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने का कुछ नहीं है. आफ्टर यू नो हर मतलब दिस व्हेन अ किंग बट डाइज, तो बहुत बार क्या होता है ना, देयर इज अ सक्सेशन डिस्प्यूट. सक्सेशन डिस्प्यूट भी बहुत बार एम्पायर्स का बंटवारा हो जाता है काइंड ऑफ, ठीक है. सो लाइक दैट वी हैव थ्री डायनास्टीज. सो जस्ट रिमेंबर दिस कि वन वॉज चालुक्यास ऑफ वातापी, देन वी हैव गंगाज ऑफ गंगा रूलर्स ऑफ तलक्कड़. तलक्कड़ भी कहाँ है? हमारे पास कर्नाटका में. वातापी कर्नाटका. मगध हमें पता ही है कहाँ है. कदम्बाज ऑफ बानावसी, ठीक है, अगेन इन कर्नाटका. किंगडम ऑफ गॉड, गॉड इज बंगाल. Then we have kingdom of Thaneshwar, again I told you, in Haryana. Then we have later Guptas of Magad Malwa. Later Guptas क्या है कि गुप्ता रूलर्स एकदम से पूरा डिक्लाइन नहीं हो रहा है. सम पीपल से दैट दीज जो पहले के इंपीरियल गुप्ता रूलर्स थे उन्हीं के हो सकता है ट्रेसेस, ओके, बट देर इज नो प्रॉपर अग्रीमेंट रिगार्डिंग दिस. बट जस्ट रिमेंबर देर वॉज ऑल्सो लेटर गुप्तास विच बिलोंग टू दिस पीरियड. मैत्रकाज, इस पर भी शायद क्वेश्चन आया था, इट वॉज मैंशनड समवेयर. तो मैत्रकाज जो है of Vallabhi, Vallabhi is kind of Gujarat. Then we have Mokharis of Kannauj UP. Then we have Pallavas of Kanchi, Pandyas of Madurai Kanchi मैंने बोला एकदम नीचे के साइड में, ठीक है. एक बार ना ओपन द मैप योरसेल्फ. आई वॉज नॉट एबल टू इंक्लूड हियर बिकॉज ऑफ दीज कॉपीराइट इशूज एंड ऑल. तो कोई अच्छा मुझे फ्री का मैप मिला नहीं, ठीक है. सो दैट्स आई वॉज नॉट एबल टू इंक्लूड इट इन दिस स्लाइड, अदरवाइज आई वुड हैव इंक्लूडेड. सो जस्ट गो फॉर योरसेल्फ एंड सर्च अबाउट यू नो दीज कि रीजनल किंगडम्स. इसको सर्च करके यू कैन सी देयर लोकेशन. एंड देन वी हैव द वाकाताकाज ऑल्सो एट दिस सेम एरिया, एंड दिस वॉज द नेम ऑफ देयर इंपॉर्टेंट रूलर्स. वाई? बिकॉज दे रिमेंबर एक वन स्लाइड में आई टोल्ड यू इन द शुरू में, आई थिंक 2022 में, दे हैड गिवन द नेम ऑफ डायनास्टी एंड दे हैड गिवन द नेम ऑफ किंग, ठीक है. सो दिस इज देयर, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू जस्ट टू मोर, ओके. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस, just one second, अर्ली मिडिवल पीरियड, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो द, और 2-3 मिनट में वी आर गोइंग टू एंड बिकॉज रियली द वीडियो इज बिकमिंग लॉन्ग, ठीक है. सो इन द अर्ली मिडिवल पीरियड वी रीच टू द अर्ली मिडिवल पीरियड. अर्ली मिडिवल पीरियड क्या है ना, अर्ली मिडिवल पीरियड हम कौन से पीरियड को बोल रहे हैं? जनरली कुछ लोग हैं जो हर्षवर्धन के बाद से दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होने के जो बीच वाला पीरियड है, दे कॉल दैट पर्टिकुलर पीरियड एज अ अर्ली मिडिवल पीरियड. सम पीपल से कि गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन होने के बाद से दिल्ली सल्तनत जो है उसके राइज होने का, दिल्ली सल्तनत जो राइज हो रहा है दैट इज 1206. यहाँ से क्या है, हमारे पास दिल्ली सल्तनत का प्रॉपर बिगिनिंग हो रहा है. इसके पहले वाले पीरियड को वो बोल रहे हैं अर्ली मिडिवल पीरियड, ठीक है. अर्ली मिडिवल पीरियड में अरब इन्वेजन हैड हैपेंड. अरब इन्वेजन काइंड ऑफ फर्स्ट बोल सकते हैं एंट्री ऑफ दिस यू नो इस्लामिक इन्वेजन्स दैट हैड हैपेंड अप्रॉक्सीमेटली इन द ईयर 711 AD. अगेन इंपॉर्टेंट 8th century AD, ठीक है. सो अर्ली मिडिवल पीरियड अगर हम बोलते हैं वेरियस रीजनल किंगडम्स एंड ऑल, तो वहाँ पर क्या है ना कि हर्षवर्धन के डेथ के बाद, जस्ट लुक एट द टाइम पीरियड. हर्षवर्धन का डेथ मैंने क्या बोला, इट हैड हैपेंड अराउंड 650 AD, नॉट एग्जैक्टली 650, 647. उसके डेथ के बाद क्या है, अगेन देयर वाज अ काइंड ऑफ रीजनल डिवीजन. उसने फिर भी पकड़ के रखा था थोड़ा बहुत, ठीक है. उसके बाद अगेन देयर वाज रीजनल डिवीजन, वेरियस डायनास्टीज विल कम अप, एंड देयर वर 3 डायनास्टीज विच वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स. 3 डायनास्टीज विच वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी. Next again somebody will try to dominate over the whole of India. Those 3 dynasties were Palas, Pratiharas and the Rashtrakutas. पालास कहाँ पे थे? बंगाल में. प्रतिहारास जो हैं, अभी हम आएंगे इन पे भी, ठीक है. तो प्रतिहारास जो हैं कि बिकॉज पहले वाले लिस्ट में तो मैंने इन पे मेंशन नहीं किया, तो सडनली ये कहाँ से आ गए, ठीक है. तो ये सारे क्या है ना, ये सारे पोस्ट गुप्ता हैं. तो पोस्ट गुप्ता वाले पे मैंने एक अलग से लिस्ट दिया हुआ है जस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड. So we have Palas of Bengal, we have Pratiharas, Gurjara Pratiharas of Gujarat area, and we have the Rashtrakutas. Rashtrakutas were of Maharashtra और the Deccan area. यहाँ के ये major rulers हैं. ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं to establish their supremacy. So this tripartite struggle is going on. And there were, we also have to read about the various regional kingdoms जो exist कर रहे हैं, क्योंकि हम chronology पढ़ रहे हैं in Rajputana areas. That is in the basically in the western area, ठीक है. तो इनका एक अलग से मैंने list दिया हुआ है. In the Deccan what is happening, या sorry in the South India what is happening is, ये सारे तो Deccan and North में चल रहे हैं. South India में after the Guptas we have the rise of the, not exactly after the Guptas but towards the later Guptas, we have the rise of Cholas
and there were other kingdoms. Cholas को remember, मैंने संगम period के time पे भी had told you about the Cholas. So those Cholas and these Cholas, some say they are the same. बीच में चोलास जो है वो डिक्लाइन हो गए थे, फ्यूडल स्टेटस हो गया था उनका. बाद में फिर से कोई इंपॉर्टेंट रूलर आया, केपेबल रूलर, एंड ही अगेन मेड टुक द चोलास टू देयर इंपीरियल ग्लोरी. इस तरीके से. तो इसको क्या है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये अलग चोलास थे. जस्ट रिमेंबर कि चोलास जो हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, इंपीरियल चोलास, जिन्होंने जावा सुमत्रा एरिया में अपने क्या कहते हैं, दे हैड एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम्स, दे वर दीज इंपीरियल चोलास. ओके, एंड देन वी हैव अदर रीजनल किंगडम्स ऑफ द साउथ. नाउ लेट अस लुक एट देम, व्हाट वर दे. सो राजपूताना के जो किंगडम्स हैं, इसके भी ना क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है. इसमें भी क्या है, हमें नाम याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर द किंगडम्स एंड द रूलर्स ऑफ दोज किंगडम्स. सो रूलर्स ऑफ दोज किंगडम्स, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द, यस, ये दो मैंने इसको अलग से लिख के रखा है. ये चीज़ हमारे जो पहले वाला स्लाइड मैंने दिखाया था जिसमें PYQ था, दे हैड मेंशन द नेम ऑफ दीज टू किंग्स एंड देयर डायनेस्टीज. सो इफ़ यू रिमेंबर दिस लिस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हमें मेहनत करना पड़ेगा याद करने में. सो इफ़ यू रिमेंबर दिस लिस्ट, यू विल नो दैट दीज वर द डायनेस्टीज इन द राजपूताना एरिया आफ्टर द गुप्ताज, एंड ऑल्सो सम रोज ड्यूरिंग द गुप्ताज ऑल्सो, एंड बेसिकली आफ्टर, मोस्टली आफ्टर हर्षवर्धन, आफ्टर द गुप्ताज, एंड इनके नाम आपको याद रखने हैं. ठीक है, मूविंग on to our final slide, and that is what was happening, little bit in details about what was happening in the south. में मैंने बोला कि it was the Chola empire that was most dominant. Apart from the Cholas, other regional empires at that time, they were later या फिर वेस्टर्न चालुक्यास, काकतीयास, यादवास एंड होयसालास. ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ का जस्ट लुक एट द टाइम पीरियड, कुछ का हम देख रहे हैं 1312, 1326, 1342, यानी कि दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होने के बाद भी, ठीक है, इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा है कहाँ पे, सदर्न इंडिया में. ग्रेजुअली अगेन दे विल बी रिप्लेस्ड एंड वी विल हैव द बहामनी किंगडम, वी विल हैव द विजयनगर किंगडम कमिंग अप. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर that it was the Cholas after the Guptas. North में हर्षवर्धना, south में it was Chola dominance, and these were the ones who were coexisting. Cholas में भी we have to remember कि Cholas में their capital was Tanjore, और second capital था, एक और capital था गंगाईकोंडा चोलापुरम, जिसको किसने किया था, राजेंद्र द फर्स्ट. It was founded by Vijayalaya. Two other major rulers of this dynasty were Raja Chola, who had built Rajeshwara temple, या फिर Raja Rajeshwara temple और बृहदेश्वरा टेम्पल, एंड राजेंद्र द फर्स्ट जिसने बंगाल, ओडिशा, बर्मा, ये सारे क्या हैं, ये सारे साउथ के किंगडम्स हैं. साउथ के राजा होते हुए भी he had captured the kingdoms which are in the Gangetic plain. Okay, that's why he took this name as Gangaikonda, he basically made a separate capital and called Gangaikonda Cholapuram. Okay, so I hope after reading this I was able to help you with the timeline and chronology, and I was able to explain you in a very lucid way. Take running notes were required, and also you can do one thing, that I have this Telegram channel. It's called Rooted History Optional for UPSC. There I'll try to upload if possible this slide. You can basically go and check out over there as well. So thank you so much. Subscribe to this channel